सर आपका माइक ऑफ है। Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, thank you. Thank you for the response. So today is the last day for the MySQL. We'll be completing with all. And then from Monday, I guess we'll be looking for Python. Okay. So a new journey will be starting soon enough. Okay. And on Monday, it would be probably it would not be there possible for our session because I would be traveling somewhere. So because of that, so there are very little chances of that. I'll be posting you and I'll be updating you before the session. Okay, so as I said, we'll be continuing with our completion of the MySQL over here as data preprocessing always in our mind, our focus, and then we'll be moving on forward for my Python uh, session, or let's say for Python tool. Okay, there also we'll have to look over particular data analytics and data preprocessing part only. Now, okay. So here we have left out with yesterday where we came up to this one, skewness and this one. Okay. So from here we'll be discussing on our typecasting. Now, as I said, the first step that we always have in our data analytical process is something we call as a data pre-processing in typecasting, then duplicates, then finding out outliers, then imputing missing values. Those are different steps. It is not necessary. It is not written anywhere that all the steps has to be implied or all the steps has to be used in every data set. Okay, but this has been divided into two parts. Application is afterwards. First is the detection part. What does it means? Let me tell you. See, for example, let's say if you have an X column and then in that X column, you find out some missing value like this. Okay, there were numbers, 1, 2, they were nowhere over here, and then 4, 5, 6 like that. So over here, what you saw, there is not a number in this record, but the details are present, isn't it? X1, X2, X3, X4, and so on. There were other columns which were having this particular details inside that, where the first column, there was only one this which was not having any details inside it. That means that it is not blank. It is not been unnecessarily provided over here, or it is not been an let's say coincidentally created over here. There were some data, but who knows, by mistake, let's say there was not even a proper numbering over here, or there could be a number of reasons for that. So what we are going to work over here, what you should interpret over here. So the interpretation is by simply imputation. But imputation comes afterwards. First is detection. Now, when I'm saying that it is in X1, it is easy for us because I am indicating your label name. I'm indicating where exactly that missing value is there. But just imagine when you have, let's say, 50 columns. In that 50 column, you'll have to identify, let's say, in 127th row where you will find a missing value, isn't it? It's very, very difficult for to finding out those details like that. So you have to do like that. And then when you find it out, then you have to use your logic. Should I go for mean? Should I go for median? Should I go for mode? And should I go for constant or should I go for random? It has different approaches. Then what should we do? Okay, so this is where data pre-processing part comes, and we are not able, or we are not even, let's say, recorded anything that it says that in every data set you will have to go through all the steps or you have to implement all the steps. Nowhere. Okay. एक second. Yeah, Chaitanya ji. Yeah, I
तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि हमने जितने भी स्टेप्स फॉलो किए हैं, अंडरस्टैंड किया है, ऐसा कहीं मैंडेटरी लिखा नहीं है, ऐसा कहीं पे कुछ बताया नहीं है कि हर एक जगह पे आपको हर एक स्टेप करना ही है, हर एक डेटा सेट में आपको परफॉर्म करना ही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी लॉजिकल. फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, first you need to identify the error, and then only you can implement. Whatever resolution is there, you can implement afterwards, but first step is identifying the issues. So in MySQL, since it does not have that much of flexibility, उतना convenient नहीं है यूज करने में, तो होता क्या है ना कि हर बार मैक्सिमम स्टेप जब हम यूज करते हैं ना, तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम करते हैं इंप्लीमेंटेशन. वेराज आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि एक्सेल में जो हमने पिछले में किया था और पाइथन में इट इज वेरी मच इजियर देन दैट. आप क्या करते हो, फंक्शन यूज करते हो ना, जब कोई फंक्शन यूज करते हो तो फंक्शन इटसेल्फ इज कैपेबल of identifying also and imputation also, so that becomes easier. But here यहाँ पे ऐसा नहीं है. Okay, तो थोड़ा सा ना लंबा रूट लेना पड़ता है. That's why this whole story was there. So हमेशा कुछ भी करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है. तो जितने भी स्टेप्स है, टाइप कास्टिंग बोलो, आउटलायर आइडेंटिफिकेशन है, मिसिंग वैल्यूज है, स्केलिंग है, जो कोई भी आप नाम बता दो, those we have to first identify and then based on that we have to place. Okay, or let's say do the imputation or whatever that particular method has to be implemented. So वैसे ही पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे हमने जो टेबल बनाया उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ऑलरेडी एक टेबल है ना एम्प्लॉयमेंट में, उसमें से हमने क्या किया, टाइप कास्टिंग के लिए, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, टाइप कास्टिंग के लिए एक एम्प्लॉयमेंट इन्फो करके हमने एक डिफरेंट टेबल बनाया है, एक डिफरेंट टेबल बनाया ताकि हमको उसी टेबल में चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े, वो हम कहीं और पे करें. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार क्वेश्चन आप जब रियल लाइफ में जाओगे आपको बहुत बार पूछती ही कंपनी, फिर आपको ऐसे पूछा जाता है कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किया है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का बोलते हो, या फिर जो भी है क्लाइंट के साथ से लेके जैसे स्टार्ट से एंड में जो आपका प्रोजेक्ट होता है, वो कैसे डील करते हो, कैसे आप वर्कआउट करते हो, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे कैसे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. रिमेंबर दैट व्हेनेवर डेटा सेट इज प्रोवाइडेड टू यू, जब कभी आपको ऐसे डेटा सेट दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल इससे पकड़ लो कि T1 है, ये आपका ओरिजिनल डेटा सेट है विच इज बीन गिवन बाय योर क्लाइंट. ओके, तो क्लाइंट ने देने के बाद में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसे उठा देते हैं और उसमें हम डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे. व्हाट वी विल डू, विल स्टार्ट डेटा डीपी करता डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे, और जो होने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसे विजुअलाइजेशन में लाके रख देंगे, VS या VZ, विज कर दो उसे, VZ है ना, कूल नेम है, विज कर देंगे. बट ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता है. ओके, ये ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ. सी, पहले जो डेटा सेट आपको दिया गया है क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट क्या करता है ना, कभी भी अगर फॉर एग्जांपल पकड़ लो फ्लैट फाइल है, या फॉर एग्जांपल पकड़ लो किसी डेटाबेस से है, तो फ्लैट फाइल से तो चलो ठीक है, आपको वो फाइल शेयर कर देगा. ओके, फिर आप क्या करोगे, उसे उसको उठा के आपके कहीं भी जो डेटा टूल है, डेटा प्रोसेसिंग का टूल है, फिर रीड करने का टूल है, वहां पे रीड करोगे और उसमें से जो भी चीजें आपको आइडेंटिफाई होगा, आप उसे डेटा प्रोसेसिंग के लिए लेके जाओगे. फिर आपने चेंजेस कर दिया ना, चेंजेस करने के बाद में आपको कहीं ना कहीं तो जो डेटा प्री प्रोसेस किया हुआ डेटा है, कहीं तो सेव करना पड़ेगा, कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना. डेटा प्री प्रोसेस करके आप स्टोर ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आपने विजुअलाइज कर दिया और बाद में पूरा प्रोसेस क्लोज कर दिया. लेट्स से कि कल जाके वो फाइल डिलीट हो गया, जो आपका ये ओरिजिनल फाइल था, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो आपने लिया था, लेट्स से कि वो कल डिलीट हो गया, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग भी उसी के साथ लिंक था, ओरिजिनल फाइल वही था. प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका रिलायबिलिटी जो होता है ना, एक ही फाइल पे हर एक चीज के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट जो भी फाइल आता है हम क्या करते हैं, हमारा खुद का एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं. अब डेटाबेस कुछ भी हो सकता है. ओके, डेटाबेस आपका हो सकता है कि शायद जितने भी आपने n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स किए उसके अंदर का एक डेटाबेस होगा प्रोजेक्ट करके, हो सकता है कि शायद आपके कंपनी का कोई डेटाबेस होगा जहाँ पे आपने कंपनी वाइज डोमेन वाइज प्रोजेक्ट्स रखे होंगे. व्हाटसोएवर आप क्या करते हो, उस डेटाबेस में पहले उसको पुट कर देते हो. पुट करने के बाद में आप उस डेटाबेस में से आपको जो टूल यूज करना है, उस टूल में आप उसको इंपोर्ट करते हो ताकि हमारा ओरिजिनल डेटा वहां पर रहेगा. आपने क्या किया सर, उसे इंपोर्ट किया है यूज करने के. इंपोर्ट करने के बाद में आप वहां पे क्या करते हो, आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हो. डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के बाद में जो फाइल रेडी होता है, वो फाइल भी फिर से आप आपके डेटाबेस में सेव करते हो. ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि कल जाके आपको डेटा, क्योंकि अल्टीमेटली अपना गोल क्या है, जो हमने डेटा प्री प्रोसेस किया है उसी के बेसिस में तो हमें विजुअलाइजेशन करना है. isn't it? हम थोड़ी जो क्लाइंट ने दिया है उसमें जिसमें कि एरर है, प्रॉब्लम है, वो करेंगे नहीं करेंगे. सो डेटा प्री प्रोसेस वाले पे हम फोकस करेंगे. सो दैट शुड बी सेव समवेयर. इफ इट इज नॉट सेव, क्या होगा, मुझे हर बार जब कभी भी फाइल बुलाऊंगा तो हर एक स्टेप बार 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 रिपीट करना पड़ेगा.
So to avoid that and also for the convenience of others who have been working with us, we have to save in our database. So दो फाइल बन जाती है, एक होता है ओरिजिनल, एक होता है आपका डुप्लीकेट या फिर डेटा प्री प्रोसेस्ड फाइल। वो फाइल से फिर आप क्या करते हो, फिर से उसे कॉल करते हो विज में विजुअलाइजेशन के लिए, पावर बीआई बीआई टूल जो भी होगा उसमें कॉल आउट करते हो और उसके बेसिस में आपका एनालिसिस क्रिएट करते हो। नाउ इसको अगर मैं टूल के हिसाब से बताऊं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको एक सीएसवी फाइल दिया है, इस सीएसवी फाइल को हम क्या करेंगे, हमारे माइस्क्ल में पुश कर देंगे, डेटाबेस है माइस्क्ल में पुश कर देंगे, वहां पे एक फाइल बना देंगे हम। ओके, फाइल बना दिया इस डेटाबेस में। ओके हाँ, बना दिया। अब हमने क्या किया भाई, ये फ्लैट फाइल जो हमारा यहाँ पे था, हमने उसको पुश कर दिया हमारे माइस्क्ल में, डेटाबेस में। डेटाबेस में होने के बाद हम क्या करेंगे, वहां से इंपोर्ट करेंगे हम हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। अब ऐसे में क्या है, आप माइस्क्ल में डेटा प्री प्रोसेस कर सकते हो, आपकी चॉइस है। उसके बाद आपको और लगा कि नहीं मुझे थोड़ा और इम्प्लिसिटली विजुअलाइजेशन के साथ करना है, थोड़ा और अच्छे से करना है, आप पाइथन में जाइए, नो इशू। ओके, आपने इसे क्या कर दिया, पाइथन में पुश कर दिया, वहां पे आपने डेटा प्री प्रोसेस किया है। आपने क्या किया भाई, नहीं मुझे इससे ना थोड़ा एक्सेल इजियर पड़ता है, आई गो फॉर द एक्सेल और लेट्स से एमएस एक्सेल, तो आपने इसे एमएस एक्सेल में कर दिया, वहां पे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली जो भी आपका यहाँ पे फाइल रेडी होगा, पाइथन में हो या एक्सेल में हो, फिर आप क्या करेंगे, उसे वापस से जो आपका यहाँ पे फाइल है, थोड़ा छोटा कर देता हूं, इतना बड़ा नहीं करने की जरूरत है। ये जो आपको ओरिजिनल फाइल था आपने यहाँ पे लाया है, मैं क्या करूंगा, एक और क्रिएट करूंगा और ये होगा डेटा प्री प्रोसेस वाला, जो मैं यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेस किया है वो वाला फाइल यहाँ पे भेज दूंगा। फिर यहाँ पे जो डेटा प्री प्रोसेस्ड फाइल है, मैं उसको यहाँ से उठाऊंगा और वहां से लेके जाऊंगा मेरे विजुअलाइजेशन के लिए, डीप बीआई कर देता हूँ, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, यहाँ पे जहां पे मैं अलग अलग चार्ट्स बनाऊंगा। ऐसे अलग अलग वहां पे चार्ट्स वर्कआउट करूंगा। और फिर क्लाइंट को जो चाहिए, अब ये किस फॉर्मेट में होता है, पीडीएफ में होता होगा, आपको अगर सामने से पूछता है तो आपको अगर चाहिए पीबीआईएक्स फॉर्मेट में करना होगा, पीबीआईपी फॉर्मेट में जो भी है, या पीपीटी में करना होगा, जिस किसी में भी करना होगा फॉर्मेट में, वो आपको सेव करना है और वहां से उसको आपको क्लाइंट को सेव प्रोवाइड करना है। अब क्लाइंट विजुअलाइजेशन कंफर्म करने के बाद में वो क्या बोलेगा, ओके ठीक है। अब आपने जो डेटा प्री प्रोसेस फाइल किया है, आपने जो डेटा प्री प्रोसेस फाइल किया है वो आप यहाँ पे रख के क्या करना है, इजंट इट, बिकॉज अब हर बार जब मैं आपको डेटा दूंगा, सिंस इज अ क्लाइंट, अभी वो कंटिन्यू में आ गया ना, तो वो जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, जब आपको पता है कि ये डेटा आने वाला है, यही मेथड आने वाला है, तो उससे अच्छा क्या करते हैं कि ये जो डेटा है ना, मैं मेरे सिस्टम में भी लगा लेता हूँ। ये जो है ना, मैं ये जो प्रोसेस आपने किया है, ये मैं क्या करता हूँ मेरे सिस्टम में भी लगा दूंगा। उससे होगा क्या, जो मेरा रॉ फाइल है वो तो वहां रहेगा, लेकिन जब आपके पास आएगा तो वो डेटा प्री प्रोसेस करके आएगा, जो स्टेप्स आपने डिफाइन कर रखे। उससे क्या होता है, अपना टाइम जो बचता है वो एक बहुत कन्वीनियंट वे से हम उसको आगे जाके यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स हाउ एन इंडस्ट्री, ओके, हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ वन पार्ट ऑफ इट वर्क्स। यही चीजें आप देखोगे तो ये क्लाउड में भी होता है, ये चीजें देखो तो इसे वेयर हाउस के स्वरूप में भी यूज किया जाता है। वेयर हाउस का काम क्या है, आप पढ़ो, मैं आपको एक चीज बता दो, देखो वेयर हाउस यूज warehouse are used for various business to store goods, temporary warehouse, data warehouse, by not warehouse, data data warehouse. Yeah. See, it's simply the store and manage large amount of data from various sources for analytical purpose, enabling business to make informed decision and improved operation. ओके, वो क्या करता है, अलग अलग सोर्स से डेटा लेता है और फिर क्या करता है, उसे एक पर्टिकुलर जो आपने प्रॉपर फॉर्मेट बना रखा उस फॉर्मेट में आपको आउटपुट देता है। ओके, तो ये उसका काम है डेटा वेयरहाउस का। सेम आप यहाँ पे सिस्टम में यहाँ पे आप आपके क्लाइंट को भी करके देते हो। ओके, तो इट बिकम्स वेरी इंप्रेसिव एंड फॉर अस इट इज वेरी मच टाइम लेट्स से ऑप्टिमाइजिंग मेथड। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ओके, आपके प्रोजेक्ट में भी ये आपके प्रोजेक्ट में आपको ये मेथड करना है। ओके, क्यों? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में भी मैं क्या करूंगा, आपको एक फाइल दूंगा, ये ऐसा एक फाइल दे दूंगा मैं, आपको क्या करना है, वो फाइल को
आपको MySQL जो CSV फाइल या जो भी फाइल होगा आपको उसको पुश करना है MySQL में। MySQL में पुश करने के बाद में आपको वहां पे क्या करना है, वहां से निकाल के आपको करना है डेटा प्रोसेसिंग। योर चॉइस, आपको MySQL में करना है या किसी और टूल में करना है, इट्स योर चॉइस। वंस यू हैव डन विद दैट, आपको वापस से उसको क्या करना है, MySQL में सेव करना है, डेटा प्रोसेस फाइल MySQL में सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है उस पर आपको विजुअलाइजेशन करना है फॉर विद BI, जो भी आपको टूल यूज करना है कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास में टेबल 1 जो ओरिजिनल है वो तो रहेगा ही रहेगा, टेबल 2 जो डुप्लीकेट है या फिर जो डेटा प्रोसेस आपके पास, दोनों फॉलो रहेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके तो ये फॉर्मेट रहेगा, ये ध्यान रखना। आपको फाइल देने के बाद में आपको MySQL में डेटाबेस में पुश करना है, डेटा प्रोसेस करे वो दोनों फाइल सेव करने हैं, और जो सेव किया हुआ डेटा प्रोसेस आपको उस पर विजुअलाइजेशन करना है। ठीक है, यही प्रोसेस सेम आपको जो प्रोजेक्ट फॉर्मेट आपको जो भी दिया जाएगा प्रोजेक्ट, उसमें ये फॉर्मेट फॉलो करके ही चाहिए मुझे। ठीक है ना, अब उसके लिए डेटा प्रोसेस करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट जैसे हमने कहा था पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हमने आइडेंटिफाई तो कर दिया है जो हमको, अब आइडेंटिफाई की जगह मैं कहूंगा ये हमारा रिक्वायरमेंट है जस्ट शोकेस, कि जहां पे मुझे ना सैलरी कॉलम को चेंज करना है इंटीजर से या फ्लोट से मुझे कैरेक्टर में। एक मेथड तो आपको ये बता देता हूं मैं, दूसरा मेथड आपको ऑलरेडी पता है जिसे हम कहते हैं अल्टर, अल्टर से भी कर सकते हैं। ओके सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बट वी आर क्रिएटिंग टेबल एंड साइड बाय साइड वी आर अल्टरिंग, एंड बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग डेटा ओवर हियर, व्हाट वी आर डूइंग विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, जो डेटा हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं कहीं से वो रेफरेंस लेके ले रहा हूँ, तो मेरे लिए इजी कन्वीनियंट है ये। क्योंकि अगर मुझे इसके अलावा अल्टर तो कब होगा, पहले मुझे टेबल क्रिएट करना होगा, उसमें से कॉलम मुझे इनपुट करने होंगे। या अविनाश बोलिए ना। हॅलो यस अविनाश बोलिए। सर, जो हा डेटा आहे जो तुम्ही सांगितला आता हा कॅरेक्टरमधून समजा जे टाइप कास्टिंग करायचं आहे म्हणजे ट्रान्सफर करायचा आहे इंटिजर टू कॅरेक्टर केला कॅरेक्टर टू इंटिजर, हा सर याचा असा काही रूल आहे की हा पर्टिक्युलर म्हणजे इंटिजर टू कॅरेक्टर होईल कॅरेक्टर नाही तर कोणत्याही डेटा टाईपचा डेटा कोणत्याही डेटा म्हणजे 1 to 1 ट्रान्सफर होत जाईल कशामध्ये पण हे होईल? हो तो कसं आहे बघा, आता सिंपल एक्झाम्पल तुम्हाला काल सांगितलं मी, कुठे लिमिटेशन येणार, फॉर एक्झाम्पल पकडा डेटला. ओके, आता डेट फॉर्मॅट हा जोपर्यंत तुमचा वाय 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 एम एम डी डी मध्ये होणार नाही, फक्त जर तुम्ही 2019 असं दिलं तर ऑब्व्हियसली 2019 इज इयर, बट इयर मध्ये हा फक्त एक पार्ट आहे त्याचा ना डेट मधला, तर हे होणार नाही. इजंट इट, इट विल, तुम्ही इथं किती जरी डेट दिलात तर तो डेट कन्सिडर करणार का नाही करणार,
तो त्याला काय करणार, न्यूमरिकल किंवा एका पर्टिक्युलर डेटला, कारण तो फॉर्मॅट फॉलो नाही करणार. पण आपण सॅलरीला कॅरेक्टर मध्ये करू शकतो. तो काय करणार, फक्त त्याला टेक्स्ट न्यूमेरिकलचं टेक्स्ट मध्ये करणार. म्हणजे जिथं त्याचं म्हणजे लेट्स से एक्सेप्टन्स आहे त्या डेटाचा कन्व्हर्जनचा, त्या मेथड्स त्या फॉर्मॅटच्या अनुसार, तर तो घेऊ शकतो. ओके. अच्छा. हो सर. पण सर आता समजा जर इंटिजरचे काही लिमिटेशन्स आहेत, म्हणजे इंटिजर डेटा टाइपचे काही लिमिट्स आहेत, इंटिजर एवढ्यापर्यंतच घेऊ शकतो. जसं इंटिजर टू लॉंग किंवा लॉंग टू जो अनदर डेटा टाइप असेल. समजा इंटिजरचा डेटा टाइप आपल्याकडे आहे, तो आपल्याला मोबाईल नंबरमध्ये आपण ट्रान्सफर करायचा आहे. तर मग सर असं काही रूल नाही आहे ना, की इंटिजरची रेंज कमी आहे ॲज कम्पेअर टू लॉंग, तर मग तो लॉंगमध्ये होणार नाही असं? नाही नाही, हे बघा, तुम्ही जे म्हणतायत ना, मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो. आता इंटिजर म्हणल्यावर हा डेटा टाईप आहे. ह्याचे हां. तुम्ही जसं म्हणतायत ना, की ह्याच्यामध्ये इनपुट देताना काय लिमिटेशन्स आहेत. हां. सिंपल आहे. डेटा टाइप सिलेक्ट करणे आणि तो त्या रूलमध्ये बसतंय का नाही, हे दोन्ही दुसरे डिफरंट सिनॅरिओज आहेत. डेटा टाइप मध्ये मी कन्वर्जन करतोय. फॉर एक्झाम्पल लेट्स से की मी 12.85 असं मी कन्वर्ट करतो इंटिजर मध्ये. काय होणार ह्याचं 12 होणार किंवा होणार 13 होऊन जाणार. बरोबर, इंटिजर मध्ये तर झालं ना. पण मी हेच फ्लोट केलं 12 ला, तर काय होणार, 12.0 होऊन जाणार. ते पण होणार. पण हे कधी होणार, त्या लेंथ मध्ये किंवा त्या इंटिजर डेटा टाइपच्या फॉर्मॅट, पुन्हा सांगतो, फॉर्मॅट किंवा त्याच्या इनपुटच्या बेसिसवर तो कंप्लाय करत असेल तर. अच्छा. हां. ओके, ओके. ते म्हणतोय मी, है ना. हां, समजलं. येस. नाही, ते तुमचा प्रश्न हे कशामुळे एकदम बरोबर माहिती आहे का? कारण काय, प्रत्येक डेटा टाइपचं काय लेंथ आहे, प्रत्येक डेटा टाइपचं काय कॅपॅसिटी आहे. त्या कॅपॅसिटीच्या वर गेलं. सिंपल एक्झाम्पल, जर कॅर मध्ये आपण जर समजा टूच कॅरेक्टर दिलाय, तर ऑब्व्हियसली कॅरेक्टर कितीही टूच्या अंडर मध्ये असू द्या, MFA असं काही जर दिलं मी 2च्या आतमध्ये, इट विल टेक. बट एज सुन एज इट इंक्रीजेस, लेट्स से 3 कैरेक्टर में, तो वो लेता नहीं है. फिर आप कैरेक्टर ही क्यों ना लिखो. तो whatever constraint you have given, if that follows with that data type, it will be okay. Okay. ओके. येस सर. Yeah. So ये एक मेथड है कास्ट का, जो एक फंक्शन है. दूसरा अल्टर भी है. सो डिपेंड्स ऑन कि आपको सिनेरियो क्या दिया है, सामने क्या चीज है, उसके बेसिस में आप वहां पे यूज कर सकते हो. दिस इज वेरी मच acceptable or let's say usable when you have already a data. You just have to fetch the data by changing a particular data type, है ना. मतलब एक क्या है, एक टेबल मेरे पास ऑलरेडी है, उसमें से स्पेसिफिकली मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा कन्वर्जन करके मेरे दूसरे टेबल में लेना है. तो क्रिएट करने के बजाय बेटर है कि मैं उसको डायरेक्ट फेच करूं और डेट टाइप कास्टिंग करूं, ये बेटर होता है. ओके. सो इस टाइप में आप वहां पे कास्ट यूज कर सकते हो. अगेन, अब दूसरी बात आती है डुप्लीकेट फाइंड आउट करने की. जैसे आपको ऑलरेडी पता है, डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए दो बेसिस पे डुप्लीकेट होते हैं. एक होता है रोज, एक होता है कॉलम. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फाइंड आउट करेंगे रो के बेसिस में. आप पहले रो फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए कैसा लिखा है देखो. अगेन, ये पहले कभी भी रीड नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है. वी हैव टू ऑलवेज रीड इट फ्रॉम. फ्रॉम कौन सा टेबल है, ये टेबल है. इस टेबल में क्या बताया गया है कि भाई जो एम्प्लॉय आईडी है मेरा, मैं टेबल पहले रन कर लूं ताकि हम उस पर डिस्कस कर सके. इट्स एम्प्लॉयमेंट info. इसको एक्टिवेट कर देता हूं. दिस वन. ओके. तो ये डेटा है. अब अपने डेटा में क्या बताया, देखो ये तो जितने भी डुप्लीकेट कॉलम है ना, जहाँ पे जितने भी डिटेल्स होंगे डुप्लीकेट, हमको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है. जैसे 1 है, 2 है ना, ऐसे कुछ जो डुप्लीकेट्स हमको उसको आइडेंटिफाई करना है. अब आईडी के बेसिस में क्यों किया, क्यों हमने सैलरी के बेसिस में नहीं किया, क्यों हमने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं किया, क्यों हमने परफॉर्मेंस बेसिस में नहीं किया, क्यों हमने डिपार्टमेंट बेसिस. सी बेसिकली क्या होता है, कभी भी हम डुप्लीकेट फाइंड आउट करते हैं ना, तो एक मेथड होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसा आप कॉलम यूज करो जो कि यूनिक वैल्यू से भरा होगा, या फिर जो यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. यूनिक वैल्यू मींस आल्सो समथिंग कॉल्ड पीके समवेयर. इसको भी रेफर किया जाता है पीके, which does not allow null values, which does not allow any duplicate values. So if there is pk, any one of a column which is primary key, आप उसे भी यूज कर सकते हो. क्यों आईटी नहीं कर सकते, देयर इज ऑब्वियस चांस कि डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम्स आएगा. एम्प्लॉय नेम क्यों नहीं कर सकते, देयर आर ऑब्वियसली मल्टीपल चांसेस दैट देयर कुड बी अ नेम व्हिच कैन बी रिपीटेड. बिकॉज अगर मेरा नाम दीपक भातलवंडे है, तो ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है कि मेरा नाम से दूसरा कोई आएगा. ऐसा कहीं पे भी ऐसा सिनेरियो नहीं है. आ सकता है, मैंने कोई पेटेंट नहीं कर रखा नाम को, तो वो आ सकता है. बट हाँ, वहां पे क्या हो सकता है, हाँ मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे सर नेम, तो ये तीनों को मिक्स होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ओके, इन दैट केस इट कुड बी यूज्ड.
बट हियर दैट इज नॉट सिनेरियो। कहीं पे तो आपने सुना भी होगा, मतलब इंग्लिश कल्चर में या फिर वेस्टर्न कल्चर में देखा होगा कि किंग आर्थर की, जैसे किंग आर्थर जूनियर 1 जूनियर 2 किंग आर्थर ही चलता रहता है। सो ऐसे भी आपके डिटेल्स हो सकते हैं। So that's why those all are the details which may have their repetitions. So we are avoiding that and we are looking for ID over here to check out. Now remember, बहुत बार क्या होता है ना, जब आपके पास डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो आपके पास में डेटा यहाँ से, इस पूरे डेटा सेट में लेट्स से ऐसे कुछ कॉलम है, लेट्स से कि मैं आईडी यहाँ पे देता हूँ, आईडी, फिर आपका बर्थ डेट है, फिर आपका लेट्स से एज है। अब आईडी के बेसिस में बर्थ डेट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, आईडी है कोई रिपीट नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये 2 रिपीट हो गए, है ना, 2 रिपीट हो गए, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट मैं बता देता हूं जो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, हम बात करते हैं डुप्लीकेट कब होगा, जब मेरा पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड डुप्लीकेट होगा, सेम वैल्यू रिपीट होगा तो ही होगा। नाउ अगर किसी ने या फिर किसी टूल के हिसाब से, वो टूल कौन सा है मैं भी वो भी बताऊंगा, रेफर भी करूंगा आपको। कभी कभी ऐसे टूल क्या करता है कि ना खुद ब खुद अपने हिसाब से हम कभी भी उसमें डेटा इंपोर्ट करते हैं तो अपने कन्वीनियंट के लिए या फिर बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, खुद का इंडेक्स लगा देता है, इंडेक्स नंबर 1, सॉरी यहाँ से नहीं लगेगा, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप पूरे डेटा सेट को रेफर कर रहे हो तो आईडी जो ओरिजिनल था उसके पहले एक और कॉलम जो क्रिएट हुआ है उसके रेफरेंस के थ्रू आप चेक करोगे। अब ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, जब सीरियल नंबर क्रिएट हुआ है, सीरियल नंबर तो कोई डुप्लीकेट आएगा नहीं, इजंट इट? तो क्या होता है, डुप्लीकेट होने के बावजूद भी वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं मेरे इसमें कोई डेटा में डुप्लीकेट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये एम्प्लॉय आईडी या फिर कोई ऐसे रीजनेबल कॉलम नहीं है तो इसको निकालो, इसको निकालो और इसको छोड़ के बाद में आगे के डिटेल्स को फाइंड आउट करो। सीरियल नंबर है, लेट्स से रो नंबर है, इन चीजों को छोड़ के ही आगे कैलकुलेट करना चाहिए, वो बेटर होता है। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। वेरी गुड। तो अभी कैसे करेंगे हम, तो हमने क्या लॉजिक लगाया कि भाई पहले क्या करो ना, अपना टेबल लेके आ जाते हैं, उस टेबल में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट इन्फो है, हम क्या करेंगे हमारा एम्प्लॉय आईडी के बेसिस में करेंगे, क्योंकि आईडी है जो यूनिक होना चाहिए, और अगर वो रिपीट होता है तो डुप्लीकेट है। वेरी लॉजिकल थॉट। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय आईडी कर देते हैं, ग्रुप आईडी से मतलब क्या होगा, 1 1 1 ऐसे आपका ग्रुप बनता जाएगा। और अगर किसी भी ग्रुप में अगर उसका काउंट, किसी भी ग्रुप में उसका काउंट अगर 1 से ज्यादा है, लेट्स से एक्स है ये, एक्स ये अगर 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, हम उसे डुप्लीकेट करार दे देंगे। ये अपना लॉजिक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है। सो मैं इसे रन करता हूं। सो यू विल सी दैट, ये देखो ये आ गया वैल्यू। क्या किया हमने, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, काउंट बता दो मुझे, काउंट आपको यहाँ पे मिल गया। सो 1 का 2 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 3 है, मतलब क्या, डुप्लीकेट वैल्यूज अपने यहाँ पे है। ये अपने क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके हम्म हम्म। और अब आप यहाँ पे जो काउंट देख रहे हो, जो आंसर आ रहा है, ओके, हैविंग है ना, अपने हैविंग, हैविंग मतलब क्या कर रहा है, अगेन फिल्टर, हैविंग इज आल्सो वन ऑफ अ फिल्टर। तो आपको जो काउंट में पूरी लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, व्हाई देयर इज नो अदर डिटेल्स, बिकॉज व्हेन यू हैव सेड दैट ग्रुप बाय भी करो और उसके साथ में जिसका काउंट 1 से ज्यादा है ना, वही मुझे एम्प्लॉय आईडी और उसका काउंट दिखाओ, इसलिए क्या है, आपको उतने ही डिटेल्स मिल रहे हैं। देखो अगर मैं ये ना करूं तो देखो यहाँ पे 35 रिकॉर्ड्स आपको आउटपुट मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग 35 रिकॉर्ड एज एन आउटपुट, दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में। Yes, sir. ओके यस सर। तो यहाँ पे हैविंग क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज एन फिल्टर where you are constraining that you need to only show those having count more than 1. You don't have to give all the information like this for every records, only those who have duplicates. यहाँ पे ऐसा काम करता है। अब हमने क्या किया, पहले पहले हमने आइडेंटिफाई किया है, अभी तक हमने उस पर कुछ उसका रिजल्ट नहीं लिया, हमने उस पर कुछ क्या कहते हैं, तात्काल हमने उस पर कोई मुहिम नहीं छेड़ी है, या फिर हमने कोई उसको रिजल्ट के बेसिस में उस पर कंक्लूजन नहीं किया है, वी आर जस्ट फाइंड आउट, हमने उसको क्या है, सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करना है, ये अपने चॉइस है,
नाउ अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, हम क्या करेंगे भैया, एक टेम्पररी एक इन्फो टेबल निकाल देंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, सिर्फ डिस्टिंक्ट डिटेल्स को एम्प्लॉयमेंट में डाल देंगे। एक टेबल क्रिएट करेंगे, वहां पे क्या करेंगे हम, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, जो यूनिक है उन्हीं काउंट को लो, और वो एम्प्लॉयमेंट से आना चाहिए, और वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा मेरे नए क्रिएट किए हुए टेबल में। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा इस एम्प्लॉयमेंट टेबल से डुप्लीकेट डेटा था, जितने भी डुप्लीकेट डेटा थे उसमें से जो यूनिक वैल्यूज है वो आ जाएंगे, और वो आने के बाद में कहां पे जाएंगे, मेरे टेबल में सेव हो जाएंगे। वेरी क्लेवर मेथड, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट डेटा को ही आपको कलेक्ट करके देता है। सो इफ यू रन दिस, ऑलरेडी दिस सॉरी इट इज ऑलरेडी देयर, आई विल जस्ट रन दिस वन। देखो ये डेटा जो है, देखो ओके, देखो जितने भी रिकॉर्ड्स है यहाँ पे सबके सब अभी यूनिक है। इज इट क्लियर फॉर नाउ? सर ये पूरे एंटायर रो के अकॉर्डिंगली डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करता है। आपने स्टार किया ना, देखो ना यहाँ पे स्टार किया ना, पर्टिकुलर कोई कॉलम नहीं डिफाइन किया ना, सो फॉर एवरी। और रो कैसे डिसाइड होता है अगेन, डुप्लीकेट, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड अगर मैच होगा तो ही होगा ना। कल मैं जाके फॉर एग्जांपल गलती से अगर इस वन की जगह पे इसको हटा के वन कर दूं, तो बेस्ड ऑन वन कॉलम आई कैन नॉट डिसाइड कि ये पूरा रिकॉर्ड मिसमैच है, इजंट इट, या डुप्लीकेट है। करेक्ट है यस सर। फॉर दैट। ओके, सेड दैट, ये एक और मेथड, ये कौन सा मेथड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, चलो इसका इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ट्रंकेट बाद में, ठीक है, ट्रंकेट करना कोई इशू नहीं उसका, तो बाद में इंसर्ट फ्रॉम ड्रॉप टेबल, वही है बस दूसरा मेथड है। ना, अब हम बात करेंगे आउटलायर। आउटलायर क्या होता है, जो डेटा में आपके एक्सट्रीम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मीन होता है वैल्यू वो हमेशा डिफ्लेक्ट होता है, विच ऑब्वियसली गिव यू बेस और फॉल्स बेस लाइन फॉर द रेफरेंसेस, है ना। तो उसको हम कैसे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आइडेंटिफाई करना है, और फिर बाद में हम उस पर वर्कआउट करके निकाल सकते हैं। सो आई विल जस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। अच्छा, आपके माइस्क्ल में ना यहाँ पे राइट साइड में कुछ आइकन्स है, ओके। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जो आपको हेल्पफुल देंगे प्रेजेंटेशन करने में, मेक श्योर टू यूज दैट। देखो ये जो है ना, ये आइकन जहाँ पे मतलब ये ऐसे स्क्रीन दिया है, और ये ऐसा पैनल है जहाँ पे ये ब्लू कलर का दिख रहा है, और बाकी क्या है ना यहाँ पे, तो ये जो ब्लू कलर जो होता है वो एक्टिव होता है। अगर कल जाके, जैसे ये ब्लू कलर है, चेंज द कलर, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर ऐसा है, ये ब्लू कलर मतलब क्या है, ये ब्लू कलर जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इट्स एन एक्टिव, या ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ना, स्कीमास नेविगेटर, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाजू में देखो एक और है, मगर वो ब्लू कलर ना होते हुए ये कुछ इस तरह से है, इसे ब्लैक है नीचे, ये ब्लैक है। ये ब्लैक क्यों है, बिकॉज इज नॉट एक्टिव, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके इस आउटपुट को, ठीक है, आउटपुट जो विंडो है ना उसके लिए। तो अगर मैं उसे, अगर चाहता हूं कि वो दिखाई दे, तो क्लिक ऑन दिस तो दिखेगा, अगर नहीं चाहिए तो ऐसे। अच्छा, क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि मुझे अगर आपको दिखाना है, कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो इट्स बेटर ना कि मैं आपको सब चीजें खोल प्रॉपर एक लाइन में दिखाऊं, दैट्स व्हाई, नथिंग अदर देन दैट। ओके, नाउ सेड दैट, अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स। अब आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं आपको पहले भी बता दूं, आउटलायर जैसे माइस्क्ल में वर्कआउट करता है, वैसे मतलब जैसा हम सोचते हैं कि भाई हाँ मैं आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दूंगा, क्या कह के सेव करके, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड है वो एंटाइल। एंटाइल ऑप्शन है, एंटाइल मतलब बेसिकली यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया गया है, कि अगर आपका एक डेटा सेट है, लेट्स से मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ, actually like this is point which is minimum, and if you go further this is your maximum,
ये मिनिमम वैल्यू है, दिस इज योर मिनिमम पॉइंट, दैट इज योर मैक्सिमम पॉइंट, maximum point. Okay, so first we will break it down into 4 quadrants like this. Okay, so 1, 2, 3 and 4. This is 25%, this is 25, this is 25 and this is 25 further. So 25, 25, 25 becomes 100. If you look that as a percentage, no issue, there could be, this is your 100% data with this reference. अब एक्सट्रीम वैल्यू कहां पे होती है? बाय डिफॉल्ट हमको ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, इट इज ऑलवेज ऑन द एक्सट्रीम. इट कुड बी दिस होल पार्ट, इट कुड बी दिस आउटवर्ड स्मॉल पार्ट. ओके, इट कुड बी एनीवेयर, इट कुड बी इन two scenarios. It could be at this point also, it could be this whole part also. So anyhow, that is a consideration. Now what to do with that? When we are going to use this n-tile function, our logic would be, first we need to break our data into 4 quartiles, which is we are doing over here, into 4 n-tiles that represent for 4 quartiles. Breaking our data into 4 quartiles, 4 divisions. And over that, see, over what? Order by salary. तो हमने salary column को, ये salary है, salary column को हमने क्या किया, मिनिमम से मैक्सिमम में पहले हमने सॉर्ट कर दिया. सॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसे n-tile 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. दैट इज रिटर्न ओवर हियर. ओके, और जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें क्या क्या दिखेगा, उसके बेसिस में आपको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, उसके रेफरेंसेस रहेंगे. ये तो चलो आउटपुट है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, है ना. ये तो आउटपुट है उसका, जो दिखेगा उसके रेफरेंस में. ये आपका यहाँ पे जो दिखेगा ब्रेक करके, कहां से आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट की डेटा से. तो इस तरह से आ गया. अब करना क्या है इसके बाद में? नाउ आफ्टर दैट, लेट मी डिलीट दिस वन. वंस वी हैव डन विद दैट, नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, ये ऊपर का लिखे फिर वापस नीचे आ गया वो सेम करके. सो आई विल गो ओवर हियर फॉर द हियर, नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे. अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमने क्या करना है, देखो पूरे डेटा को यहाँ पे देखो, सैलरी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को लिया है, वहां पे ऊपर सैलरी को लिया है. ओके, दिखाने के लिए, आउटपुट के लिए. यहाँ पे एंटाइल ऑर्डर बाय सैलरी, उसे 4 डिवीजन में ब्रेक कर दो. 4 डिवीजन ब्रेक करने के बाद में वेयर क्लॉज लगा के क्या करो, अब वहां पे जो आउटपुट आएगा उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ इन मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, बिटवीन होता है. जो 2 और 4 अगर हम कहेंगे तो 2 और 4 को इंक्लूड करके 3 भी ऐड करेगा. बट व्हेन आई से इन 2 and 4, which means it will only consider 2 and 4, no 3 in between it. तो यहाँ पे हमने इन यूज किया. इन मतलब क्या, we are only going to take the data which is 1 and 4. मतलब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, एक डिटेल्स, जिसमें से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट से इंफॉर्मेशन फिल्टर करेंगे. और फिल्टर करते में क्या करेंगे, हम ये डेटा जो है 1 वाला और 4 वाला डेटा, ये हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा टेबल में से. और अभी क्या छोड़ देंगे पीछे, we have left out with 2 and 3, which is nothing but IQR. यहां पे आपका किसी भी तरह का आउटलायर होने का चांसेस 0 होता है. यहाँ पे जो पार्ट है IQR का, दिस इज वेयर देयर इज नो आउटलायर रिमेनिंग. सिंपल सा लॉजिक किया उन्होंने. अगेन, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट, इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी losing lots of details or lots of information. It's not an Excel, let's say the best part. You can use other method also, but this is one of a method you can use for this. Is it clear, guys? सर एक बार और रिपीट करेंगे क्या? ओके, देखो हमने क्या किया, पहले सैलरी, पहले मैं यहाँ से आपको बताता हूँ. ओके, लेट्स से यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ. यहाँ से भी आप ऊपर देखोगे तो इट इज नॉट अ डिफरेंट डिटेल. देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी किया गया है, 4 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है. ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जो डेटा ले रहे हैं ना, हम उसको एक दूसरे क्वेरी में, दूसरे टेबल में ना, एज अ सब क्वेरी हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल से एक सब क्वेरी, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आईडी के बेसिस में हम उसको यूज कर रहे हैं. ओके, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में एवरेज रेफरेंस करके ले रहे हैं. ठीक है, वो दूसरी बात है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ. अभी के लिए ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे. फर्स्ट वी विल, हमने जो लिखा है उसके बेसिस हम क्या करेंगे, पहले तो उसको एंटाइल 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. किसको करेंगे, ऑर्डर्ड बाय, ये विंडोज फंक्शन है. तो ऑर्डर्ड बाय सैलरी कॉलम हम क्या करेंगे, उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. ये हमारा पहला काम है. सो मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू ओवर हियर, इसको हम क्या कर देंगे, इसे ले कर देंगे ओवर दिस वन. ले करने के बाद में क्या करेंगे, हम विल ब्रेक इट इनटू 4 पीसेस.
or let's say 4 groups like this, and like this. Now we have 25% over here, 25 over here, 25 over here, and 25 over here, which is nothing but first, second, third and fourth quartile. Now डेटा सेट में जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है और अभी तक पढ़ते आए, उसमें हमें ये पता चला है कि IQR is a place which is from here to here. This is a box, or this is exactly the box plot where you have your IQR, where you do not have any outliers in that. इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के पहले which is our first quartile और इस पॉइंट के आगे जो हमारा फोर्थ क्वार्टाइल है, there are chances and there are possibilities of having outliers. तो हमने क्या लॉजिक लगाया, हम हमारे डेटा सेट से ना इन दोनों को निकाल ही देंगे, इन दोनों को निकाल देंगे. हम क्या रखेंगे, सिर्फ विल बी ओनली पुलिंग दिस और विल बी ओनली यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वार्टाइल्स 2 और 3 में जो भी इंफॉर्मेशन 2 और 3 के बीच में होंगे उतने डेटा हम यूज करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे, हम फिल्टर लगा देंगे वेयर. यहाँ पे वेयर क्लॉज है. वेयर क्लॉज क्या करेगा, इन यूजिंग इन फंक्शन ऑपरेटर हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ को ही निकालेंगे. फिल्टर कर रहे हैं ना, सो इट विल गेट फिल्टर्ड आउट, निकल जाएगा. बचा के आपका 2 और 3 डेटा जो है वो आपको वहां पे यूज होगा. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. यस. देखो ये बड़ा नहीं हो क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वगैरह ये सब जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ना, दिस इज स्कैरी. ये आपको लंबा करता है डेटा को. ओके, दिस ऑल देयर, दिस ओनली देयर. ये सिर्फ कॉलम के नाम है जो आपको दिखना चाहिए लास्ट में. ओके, नथिंग अदर देन दैट. सो डोंट गेट, लेट्स से ये क्या हो रहा है, कितना बड़ा डेटा दिख रहा है. ओके, इफ यू ब्रेक इट डाउन, एक एक इन सबको हटा दो, एक एक कॉलम करके यूज करो तो भी आपको डिटेल्स आएंगे. ओके, उसे ब्रेक करके देखो, इट विल बी वेरी इजी. ओके, हाँ, अभी उसके आगे जो पार्ट आता है जहाँ पे हम वेरिएंस चेक करते हैं, तो बाय गॉड ग्रेस वी हैव फंक्शंस ओवर हियर. वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, वो फंक्शंस है. सो उसके लिए आपको सर, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ बोलिए. जैसे एक्सेल में एक लिमिट था कि 70% एटलीस्ट डेटा को अपन को यूज करना है रिजल्ट लाने के लिए. इसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता, इसमें सीधे बाहर कर सकते चाहे जितना भी डेटा बचे. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, वो लॉजिक इसलिए यूज किया गया है ना कि कंसिडरिंग अ डेटा वेयर यू हैव ऑब्जर्व, ये मतलब कुछ है ना कि ऐसे प्री अजम्पशंस हम करते हैं कि हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि आपके पास में जो डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका लिमिट 10 है तो डेटा में हमने ऑब्जर्व किया है कि, जैसे बोलते हैं ना पहले, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव ऑब्जर्व कि डेटा में आपके कुछ वैल्यू ऐसे है कि जो 2 1 -1 ऐसे है, मतलब होना चाहिए 10 लेकिन बहुत नीचे के वैल्यूज है, ये हमने अजम्पशन करके किया है. बट अगर इस 10 के जगह 9 होंगे, 8 होंगे, 7 होंगे, तो दिस assumption और दिस methodology will not work और दिस इज नॉट particularly लॉजिकल. क्यों? आप डेटा डिलीट कर रहे हो, isn't it? वहां पे आपको क्या करना होगा, you'll have to use cases where, जैसे यहाँ पे किया है where, है ना, एक सेव करके सेट वैल्यू करके आपको वहां पे आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे सेव करके फिर उसको यूज करना पड़ेगा. ओके, यस. तो जैसे सिनेरियो होता है वैसे हमें चेंज करना होता है, दैट मे चेंज. ओके, ओके. अगेन इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि हर समय पहले आइडेंटिफिकेशन, डू नॉट रन टुवर्ड्स द कंक्लूजन कि हाँ मुझे मिसिंग वैल्यू दिख गया, अब मैं मिडन या मिडन मोड या मोड यूज कर दूंगा. फर्स्ट आइडेंटिफाई सम पर्टिकुलर पैटर्न, सम पर्टिकुलर like the relation, okay, something in them, an insight, and then use your logics. Okay, said that, अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है. मिसिंग वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमने क्या लिखा है देखो. अगेन यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो, अगेन हम हमारे ओरिजिनल डेटाबेस में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं. अगेन ये चीजें जो है किस लिए है, ये हमारे शोकेस करने के लिए, तो इसलिए हमें यहाँ से आगे कुछ करना ही नहीं है, वेयर ग्रुप वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है. मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है स्पेसिफिकली, वो किसको होता है, पर्टिकुलर कॉलम को होता है. तो आपको कहाँ कहाँ पे लगा है, लेट्स से आपको अगर लगता है कि हाँ भाई मुझे सैलरी में सैलरी पे लगा दो, एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस, जहां जहां भी मिसिंग वैल्यू वहां पे हमको पुट कर देना है. सो फॉर दैट सम क्या कर रहा है ये, वी आर फर्स्ट केस व्हेन सैलरी इज नल, तो आपको क्या करना है 1, एल्स उसे 0 आइडेंटिफाई करो, और क्या करो उसे एज एन सैलरी मिसिंग करके मुझे कॉलम क्रिएट कर दो. सो इफ यू रन ओवर हियर यू विल फाइंड दैट, राइट दिस वन, ये देखो ये कैसे कॉलम, practice employment info, I don't have the practice employment info. Okay, एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं ना.
Okay, देखो क्या कर रहा है, देखो ये टोटल रोज 41 है, सैलरी कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, नहीं है, एक्सपीरियंस रेटिंग में कोई है क्या, नहीं है, रेटिंग में कोई है क्या, नहीं, अच्छा बाकी कॉलम में क्यों नहीं लगाए भाई, सिंपल सा लॉजिक है, ये जो न्यूमेरिकल कॉलम है हम उसी पे काउंट कर पाएंगे, उसी पे सम फंक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया गया है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल नंबर है 1 2 3 और यहाँ पे अगर मिसिंग है, ओके 5 6 ऐसे, अगर आपको यहाँ पे मिसिंग मिलता है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और अगर नहीं है तो ठीक है, कोई भी नहीं है, इट विल बी गो ऑन कंटिन्यू विद दिस, ओके। तो ऐसे क्या किया है, तो जितने अगर ये 1 है, ये हाँ ठीक है, ये 0 हाँ ये ठीक है, ये 0 हाँ ठीक है, ये यहाँ पे मिसिंग है, अच्छा ये 0 ये 0 ये 0। तो अल्टीमेटली क्या किया है हमने यहाँ पे, सम यूज करके जब हम इसके कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली जितने भी 1 होंगे ऐड करके उतना ही आपका आंसर मिलेगा, अगर 1 है तो 1 होगा, कल जाके अगर मिसिंग बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से क्या आपको सम जो मिलेगा, दैट सम विल रिप्रेजेंट फॉर दैट मिसिंग वैल्यूज इफ दैट इज प्रेजेंट, अदरवाइज वो 0 रहेगा। सो ऐसे करके हमने यहाँ पे उसको कॉल आउट कर दिया, तो जहां जहां पे है वहां पे मिलेगा, जहां जहां पे नहीं वहां पे नहीं मिलेगा, ओके। अगेन ये कुछ आपके ऑब्जर्वेशंस के एग्जांपल्स, ओके, इसे देख लो अगेन, आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा इशू है, यू कैन सिंपली गेट दिस ओवर नाउ, उतना आप पढ़ सकते हो अभी, इसको कोई अलग नहीं है अभी। यूनिक वैल्यूज ये भी चलो कोई इशू नहीं है, डिस्टिंक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये सिंपली है, एक टेबल यहाँ पे दिया है, वहां से आप डिस्टिंक्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई इशू नहीं। देन ये किस चीज के लिए है, कैलकुलेट कॉलम यूनिक सब कॉलम, ठीक है। डिस्क्रिटाइजेशन, डिस्क्रिटाइजेशन मतलब क्या, अगेन ब्रेकिंग डाउन न्यूमेरिकल कॉलम इनटू योर कैटेगोरिकल रिक्वायरमेंट बेसिस पे, है ना। तो फॉर एग्जांपल अभी ये भी देखो, ये भी क्या है, सिलेक्ट, ये पूरा का टेबल जो हमें आउटपुट चाहिए वो है, तो इसको छोड़ दो, इतना मत पढ़ो, सीधे आप यहाँ से पढ़ो, यहाँ से ये वाला, यहाँ से क्या केस दिया है, ये वाला, हाँ कहाँ से, फ्रॉम टेबल है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, केस होता है स्टार्ट, एंड होता है जहां पे आप एंड लिखते हो, उन इन बिटवीन क्या कंडीशन दिया है, व्हेन सैलरी कॉलम में कोई भी वैल्यू 5,000 से अगर ज्यादा है ना, कम है ना, तो उसे मैं लो कह दूंगा 50,000, नॉट 50,000 से, और अगर कोई भी सैलरी किसी की भी 50,000 से इक्वल टू या ज्यादा है तो मैं उसे कह दूंगा हाँ भाई, और रेंज दिया है इन बिटवीन ये है तो ये रहेगा, अगेन इफ इट्स दिस हाई ये, और एल्स रहेगा तो ब्लैंक होगा तो अननोन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका डेटा वर्कआउट हो जाएगा, और ये क्या होगा, इसे एज अ सैलरी ग्रुप करके आपका नाम पता चल जाएगा कि ये ग्रुप है, क्योंकि ये क्या है, कैटेगरी है, उसका रेंज है, तो आपको वो ऐसा नाम आएगा, सिंपल सा है, ये इतना ही है यहाँ पे कोड, ये सर बाकी के ऊपर है, उसके रेफरेंस में आउटपुट में कौन सा कॉलम आना चाहिए उतने ही है, इसको रन करो, दिस लाइक दिस, ये देखो, ये जो कॉलम है सैलरी ग्रुप का ये वाला, लो हाई ये दो ही है, लो हाई उतना ही है, मीडियम में कोई भी नहीं है, 50,000 और 10,000 और 1 लाख, डायरेक्ट 1 लाख, 25, 2,50,000, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिटाइजेशन है यहाँ पे, एनकोडिंग मेथड, अब एनकोडिंग में भी क्या करना है, सिंपल सा हो जाएगा, फिर से केस वही चलेगा, कैसे चलेगा, जैसे आपने लास्ट टाइम मिसिंग वैल्यू को किया था वैसे क्या किया, व्हेन डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एचआर क्या दिखाओ 1 दिखाओ, व्हेन डिपार्टमेंट इज फाइनेंस क्या दिखाओ उसे 1 दिखाओ, ऐसे मतलब क्या है, हर एक कॉलम बनेगा, हर एक कॉलम में अगर है यस तो 1 दिखाओ, नहीं तो 0 0 दिखाओ, सिंपल सा लॉजिक, इस तरह से आपका वर्कआउट होगा। ये कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ अब ये पे, अब ट्रांसफॉर्मेशन करते समय अगेन आपको जो भी कॉलम रेफर करना है, अगर सैलरी का कॉलम है तो सैलरी का क्या करना है, आपको लॉग लेना है, तो लॉग ऑफ सैलरी, स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी, तो आप वैसे भी कर सकते हो, अगेन ये यहाँ पे इतना यूजफुल नहीं आएगा, या फिर हाँ विजुअली आप देख सकते हो डेटा, सॉरी न्यूमेरिकल डेटा देख सकते हो, बट यहाँ पे विजुअलाइजेशन करने में इसका आई डोंट थिंक इतना लॉजिकल यूज होगा, क्योंकि ये डेटा आगे जब विजुअलाइज कर पाओगे आप, कंपेरेटिव कर पाओगे तो यूज होता है, बट स्टिल we can do that, let's say transformation over here, because we just have to impute those function which are available, square root, power, inverse, cube, या जो कोई भी है आप यहाँ पे वो यूज करके कर सकते हो।
ये क्या है भाई, ये सेलेक्ट कर सकते हो तो चलो बाद में, ठीक है। सो ऑल दिस वाज दिस मीडियम। ओके, सो दिस आर ऑल रिगार्डिंग दैट डिटेल्स जो आपको एक डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए आपको कभी भी हेल्प करेगा। ये फाइल मैं अभी आपको वापस इंस्टेंटली शेयर भी कर देता ताकि प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए। तो हियर मेक श्योर कि इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगेन मैं आपको ये नहीं कहता कि चैट जीपीटी का हेल्प मत लो, बट चैट जीपीटी का हेल्प जरूर लीजिए, बट उसको एक्सप्लेन समझ के ही यूज कीजिएगा। डोंट ब्लाइंडली वर्क ऑन इट। डेटा प्री प्रोसेसिंग, ओके, इज इट क्लियर गाइस? सी आई नो कि डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल होता है, होगा भी। ये अभी तो कुछ भी नहीं है। हम और पाइथन में जाएंगे तो और डिफिकल्टीज बढ़ेंगी। सी, आप यहाँ पे आए थे, आप इसलिए नहीं आए थे कि मुझे आसान लाइफ चाहिए या फिर मुझे इजी गोल अचीव करना है। ओके, आप जब आए थे एंट्री करते समय तो ये सोच के ही आए थे कि यस, वट एवर प्रॉब्लम वुड बी देयर आई विल गेट ऑफ इट। ओके, मैं उसे किक करूंगा, आई जस्ट थ्रो इट अवे इन द बकेट, आई हैव टू फेस इट बाय एनी मींस। ओके, तो ये सोच के ही आए थे, तो उसी की सोच के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, हर बार किसी और पे रिलाई मत रहो। मैंने बहुत बार देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट देते हैं तो प्रोजेक्ट में होता क्या है कि टीम बन जाता है, तो टीम जब तक कॉल नहीं करेगी, टीम जब तक आपको हेल्प नहीं करेगी, तब तक आप खुद मोटिवेट हो या फिर खुद इनिशिएट नहीं करते। डोंट डू दैट। पगार आपको चाहिए, सैलरी आपको चाहिए, जॉब आपको अच्छी चाहिए, फैमिली आपकी रिक्वायर्ड में। ओके, मेक श्योर कि ये माइंड में ही चल के चलो। यू हैव टू रिजॉल्व इट। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेस्परेट रीजन में चैट जीपीटी के हिसाब से सब कुछ मत कीजिए। अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, जो आंसर सामने आएगा मैंने यूज कर दिया, वर्कआउट कर दिया, फिर वो गलत हो या कुछ भी हो, कुछ नहीं सोचा, अप्लाई करके चल दिया। डोंट डू दैट ऑल्सो। इसलिए फाइल भी रेफरेंस के लिए है, मेक श्योर। एंड अगेन इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट। जैसे मैंने कहा है कल, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर कोई पूछता है कि भाई मुझे आंसर में 8 चाहिए, तो 8 को लाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ऑलवेज से 4 + 4 ओनली। दिस इज वन ऑफ अ वे, देयर आर n number of ways also. Is it clear guys? यस सर। यस सर। Okay, so today I'll stop over here because again today there's not more anything from my side for the MySQL. Yes, for Monday when I'll update you how it is going to be there. So I'll update you there. From Monday will be, or let's say from Tuesday upcoming session will be starting with our Python as a session. Okay, ओके सर। thank you for the Okay, presence. sir. Yeah, good Thank night, you. take care. Thank you. Yeah, थैंक यू सर। थँक यू सर. thanks. सर एसक्यूएल खत्म हो गया है ना अभी? आज खत्म हो गया ना। Yes, Sagar, Amit, Mayur, Pratiksha, PP, you're all there. Any queries? हॅलो. Avinash, बोलिए. सर, जे काल तुम्ही फाईल शेअर केली होती ना, ते याची डेटा प्री प्रोसेसिंगची, ते मी दोन्ही वेनं केली होती. म्हणजे दोन्ही वेनं लोड केली. एक इम्पोर्ट करून केली आणि दुसरं लोड फाईलने केली. पण मला ज्यावेळेस मी ते लोड फाईल करत होतो, त्यावेळेस मी ज्या सर्व्हरवर ज्यावेळेस मी ते कॉपी केली, त्यावेळेस मला पहिले एरर आला, की प्रिव्हियस फाईल ऑलरेडी एक्झिट. कारण त्या फाईलला मी फॉरवर्ड स्लॅशने ते सर्व म्हणजे ते स्लॅश चेंज केले. त्याला डबल कोट होता. तर ते मी 4-5 वेळा रन केली, ते रन झालं नाही. मग मी शेअर सिंगल करा, स्क्रीन कोडमध्ये शेअर करा. झाली सर रन.
झाली का? अच्छा अच्छा. हां, मग मी तेच विचारत होतो फक्त. हम्म. मी ते सिंगल कोटमध्ये केली ते पाथ जो आपण दिला होता ना, ते मग हम्म. रन झाली. सर डबल कोट, सिंगल कोट याचा काही फरक पडतो का? नाही नाही, असं काही नाही. डबल कोट केलं तरी चालतं, सिंगल कोट केलं तरी चालतं, असं काही इश्यू पण नाहीये. देअर पण कुड मी बी असं असू शकतं की कदाचित ना, म्हणजे फक्त कोट नसेल तर कदाचित तुम्ही अजून पण काही ऍड केलं असेल किंवा ऍड झालं असेल जे की प्रॉपर असेल. हां, हां. पण तिथं ज्या फाईलमध्ये जे 41 रेकॉर्ड्स होते ना, तेवढेच हम्म. हे झाले बरोबर. पण मी ते हम्म. सिंगल कोटमध्ये केलं, ते लगेच रन झाली. ठीक. असं तर नाही म्हणजे काही स्पेसिफिक आहे, कारण मी सुद्धा असं ऑब्झर्व नाही केलं की सिंगल कोट वगैरे, कारण मी युज करतो डबल कोट. जसं तुम्हाला मी हं, शेअर हं, हं. करतो एक जस्ट सेकंड. हां, हां. एक मिनिट जस्ट. हे बघा, डबल कोटच आहे इथं. हं. ते डबल कोट आहे. मी शेअर करू का स्क्रीन बघून घ्या तुम्ही. बघा हा ते तेच तर सिंगल म्हणतोय, कोट. तुम्ही एकदा हां, शेअर 1 करा ना. मिनिट. म्हणजे आपण एरर सुद्धा बघू ना, की एरर एक्झॅक्टली काय म्हणतोय, त्याच्यावर पण कळेल आपल्याला. तर स्क्रीन दिसते का? हा विजिबल आहे. तुम्ही अजून रूट मध्येच काम करताय का? हां, DBAमध्ये करतो, रूटमध्ये दोन्ही ह्याच्यामध्ये करतो. ओके ओके, ते ठीक आहे. रूटमध्ये हे बघा. हम्म. रन करा ना, काय काय एरर येते बघ. रन झालंय ते. नाही, फक्त डबल कोट करू ना. डबल कोट करू का? डबल कोट करून रन करा. एरर काय येते त्याच्यावर बघू ना आपण, काय येते ते कळू द्या ना आपल्याला. हे बघा, मी पहिले वरती ते डबल कोटनं पण केली होती, तर डबल कोटनं पुन्हा करतो. आता पूर्ण रन झाली. झालं. हां, पण काल सर 2-3 एरर आले. मी तुम्हाला स्क्रीन शेअर पण म्हणजे स्क्रीनशॉट पण ओके पाठवणार ओके. होतो. पण ते नंतर रन झाली, म्हणून की मी नंतर म्हटलं उद्या सांगू सरांना. ओके ओके. नाही मी तेच म्हणतोय, कदाचित ना तुम्ही म्हणजे सोबत करताना कोड सोबत काही असं पण केलं असेल की जो लागत असेल त्याला, पण आता लक्षात हं, असेल हं, किंवा, हं. पण तसं झालं असणार आहे नक्की इन बॅक हं. तसं. हां, होऊ शकते. बघा, आपण हे दोन्ही वेने करून बघितलं होतं. इथं डबल कोट हम्म. दिला होता, तीच फाईल, आणि इथं सिंगल कोट दिला होता. हम्म. आणि मी हाच तुम्हाला उद्या म्हणजे स्क्रीनशॉट तुम्हाला करणार होतो, पण ती रन झाली. नाही ठीक आहे, काही हं, इश्यू नाही, चालतंय. हं. ठीक आहे सर. थँक यू सर. ओके. थँक्यू सर. येस येस, थँक्यू. मयूर, एनी क्वेरी? Not responding? Okay, thank you.